So we are studying Oedipus Rex in this slot. So we'll be discussing the summary and analysis of Oedipus Rex. I hope you have already gone through the video made on Greek theater and tragedy. So it was all about the origin of Greek theater, the formation, the tragedy itself. So we are now coming to Oedipus Rex, so which was written by Sophocles and translated in many languages, and many English translations are also available. So Oedipus Rex is a trilogy which is having 3 plays. So Sophocles presented these 3 plays in the competition, where all the writers would present their tragedies and comedies. So this is what we were talking about in that video, that it was a festival of Dionysius, the Greek god, where there was always a cult, and on that cult there were Greek writers, and they would present their tragedies and comedy, and on that whosoever was winner would win a goat as a prize. So that is the literal meaning of tragedy, that comes from the word tragos, which is the goat song, like a drama. By winning that, you can earn a goat as a prize. So there was merrymaking, there was wine making, wine drinking. So everything was there on that festival. So Sophocles wrote Oedipus the king, Oedipus at Colonus, and Antigone. So there are 3 plays in this trilogy. We are more concerned with Oedipus the king and Antigone. Antigone ko hum kal discuss karenge. Oedipus the king gives a psychological issue, which is the Oedipus complex. So Oedipus complex, जो कि Freud ने ज़्यादा जिस पे रोशनी डाली, that a man is more attracted towards his mother and is not much attracted towards the father, or in other ways hates his father. So that is Oedipus Rex. Morning Becomes Electra by Eugene O'Neill was also based on Orestes, which was also a trilogy. और उस trilogy में जो central figure है, that is Electra. So Electra gave birth to the concept of Electra complex, that a girl is more interested in father and she dislikes or hates her mother. अब history क्या थी इसकी के Cadmus was a person in Greek mythology. So he was the son of Phoenix or Agenor, who was a king of Phoenicia, and he was brother of Europa. So Zeus, जो कि supreme god था, वो Europa को उसने kidnap कर लिया, and the king sent his son Cadmus to find his sister. When he was unsuccessful, he consulted Delphi oracle. Like अब ये Delphi oracle क्या है कि जो Greeks के अंदर एक place होती थी जहाँ पे oracles होती थी, normally females, जो कि अपोलो से कंसल्ट करती थी और लोगों को बताती थी फ्यूचर टेलिंग या उन्हें क्या करना चाहिए मुश्किलात का हल. So he consulted the oracle, which ordered him to give up the quest. किस चीज को भूल जाओ, छोड़ दो इस काम को, यूरोपा को. Follow a cow and build a town on the spot where she lay. तो जहाँ पे गाय रुकेगी वहां पे जाके तुम एक शहर बनाओ. So since it was commandment of gods, so they could not deny it. So the cow guided him to Boeotia, the cowland, where he found the city of Thebes. Now later on, what happened कि उसको order मिला कि इसके अंदर अब he was not alone, he was having his warriors with him. So उसने एक dragon देखा वहां पे जिसने इसके साथियों को मारा, और इसने फिर उस dragon को मार दिया, और गॉड्स ने कमांड किया कि तुम अब इसका दांत जो हैं उनको जमीन में बो दो. सो वहां से फिर एक रेस निकली फियर्स आर्मी की, काफी अग्रेसिव किस्म की आर्मी थी, जिन्हें स्पार्टी कहा गया, जहां से स्पार्टा वर्ड आया.
यानी मीनिंग सोन, जिन्हें बोया गया था. So Sparti fought one another until only 5 survived. वो आपस में लड़े, सिर्फ 5 बचे. Now these 5 assisted Cadmus in building Cadmea, the citadel of Thebes, and they became the founders of the noblest families of the city. तो उनकी जो अपनी families थी वो spring होती गई. So they were the noblest people. Cadmus later took his wife Harmonia, daughter of the divinities Ares and Aphrodite. ये दोनों, Ares जो है god of war है, Aphrodite goddess of beauty है. और उनकी उसमें से इसका एक बेटा हुआ Polydorus और उसकी 4 बेटियां हुई. So this is a history. Oedipus Rex, वो थेब्स का एरिया जिसको कैडमिया भी कहा जा रहा है, ये उस एरिया में यहाँ पे सबसे पहले कैडमस आया. Now afterwards कैडमस का बेटा था Polydorus, Polydorus का बेटा था Labdacus, Labdacus का बेटा था Laius, and Laius का बेटा था Oedipus. So this is hierarchy, yeah, family tree of them. अब Laius जो था किंग Oedipus का फादर, ये जब थेब्स से इसको निकाल दिया गया, यानी he was a ruler but he was shunned away from Thebes, he was forced to go. तो इसने जाके एक जगह पे पनाह ली, and there the host, he was very hospitable, उसने इसका बड़ा ख्याल रखा. But one day Laius did a very bad act, like he had like a sexual relation with the son of the host. तो इस बात पे gods को बड़ा गुस्सा आया. So later on Laius came back to Thebes and assumed the kingship again. लेकिन gods ने इसको command किया कि या इसको curse किया कि you will give birth to a son who will kill you and marry your wife. यानी a person who will kill his father and marry his mother will be your son. So इस बात पे Laius जो था इसको बड़ी फिक्र हुई. So when Oedipus was born, Oedipus को छोड़ दिया एक ऊपर कैथरिन माउंटेन की ऊपर ऊंचाइयों पे कि यहाँ से कोई जानवर वगैरह या परिंदे इसको खा जाएंगे तो ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा. So इन्होंने उस प्रोफेसी को अवर्ट करने की कोशिश की. So we'll see how this was changed. So Oedipus the King is a tragedy by ancient Greek playwright Sophocles, first performed in about 429 BC. It was the second of Sophocles' 3 Theban plays to be produced, but it comes first in the internal chronology, followed by Oedipus at Colonus and then Antigone. So the play itself, it follows the story of King Oedipus of Thebes as he discovers that he has unwittingly killed his own father, Laius, and married his own mother, Jocasta. Over the centuries, it has come to be regarded by many as Greek tragedy par excellence and certainly as the summit of Sophocles' achievements. So it's a best of the best work समझा जाता है Sophocles का. So this myth was always there. So many writers tried writing it, but Sophocles won it. उसके पास सबसे important जो चीज थी उसका writing style था, which was always there. Up to play itself. Now, what is the play? Now, shortly after Oedipus' birth, वो पैदा होता है तो किंग लाइस जो है उसको जब ये ओरेकल मिली, उसने क्या किया कि उसने ऑर्डर दिया अपनी वाइफ को कि इस इन्फेंट को मार दिया जाए. तो इसको मार दो, इसको वेस्ट कर दो. However, उसने जो जिस सर्वेंट को हुक्म दिया था, किसी ने उसको मारा नहीं बल्कि अबंडन कर दिया. और वहां पे एक शेफर्ड मिलता है वहां पे गुजरता है जिसको यानी उसको उसके हवाले कर दिया जाता है बेसिकली इडीपस को. और इडीपस को वो शेफर्ड लेके एक और प्लेस पे चला जाता है थेब्स से दूर, जो कि कोरिंथ का इलाका है, जहां पे मीरोप एंड पॉलीडोरस. सो मीरोप इज हिज लाइक फॉस्टर मदर और पॉलीडोरस उसको फॉस्टर फादर होता है. तो वो किंग होता है उस एरिया का, पॉलीबस जिसकी औलाद नहीं होती. तो पॉलीबस और मीरोप दोनों इसको पालते हैं. नाउ वन डे ही इज स्टंग बाय द रूमर्स, क्योंकि ये अपने बाप का बायोलॉजिकल सन नहीं है. उसको पता लगता है कहीं से कि
एक ड्रंकन कोर्टियर नशे में बोल देता है कि तुम तो इसके बेटे हो ही नहीं। तो ये वहां से निकलता है एंड ही गोज टू he doesn't consult his parents, rather he goes to oracle. So oracle, like parents तो मना करते हैं उसको, लेकिन he is not convinced, rather let me correct myself. So वो जब oracle जाता है, oracle जो है वहां पे उल्टा उसको एक different prophecy सुनाती है कि तुम वो हो जो अपने फादर को मारोगे और माँ से शादी करोगे। So considering this saying that Polybus is my father and Merope is my mother, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं वहां पे वापस नहीं जाता। So he tried to avert the decree of fate. ये वहां से रास्ता बदलता है और थेब्स की तरफ चला जाता है। Now थेब्स में जब वो पहुंचता है तो वहां पे फोकिस नामी एक प्लेस है। तो फोकिस इज वेयर 3 roads are meeting. तो एक रोड डोलिया की तरफ जाती है, एक कोरिंथ की तरफ और एक थेब्स की तरफ। तो ये उस रोड में जहाँ पे सेंटर में पहुंचे तो वहां पे एक बुजुर्ग इंसान अपने दस्ते के साथ आ रहा होता है। सो ही इज हिज ओन बायोलॉजिकल फादर लायस, जो पिलग्रिमेज पे जा रहा होता है। सो जब इस इडिपस इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेल ब्रेड पर्सन, ये रास्ता रोक लेता है उसका और उसको गुजरने नहीं देता। दोनों की उनका क्वारल होता है। इडिपस अपने एक बड़े से भाले के साथ सबको मार देता है, सिर्फ एक बंदा बचता है जो कि उस मुलाजिम होता है, तो वो भाग जाता है वहां से। सो यहाँ पे जो उसका फादर है लायस, वो भी मर जाता है। देन ही रीचेस थेब्स, और मीनवाइल जब ये उसमें आ रहा होता है तो एक डेडली मॉन्स्टर, ये रास्ता इतना कोई छोटा नहीं होता, तो मीनवाइल एक डेडली मॉन्स्टर थेब्स के ऊपर उसकी एंटरिंग पोजीशन पे बैठ जाता है, विच इज कॉल्ड स्फिंक्स। यू मस्ट हैव सीन एहराम मिस्र, जिसमें हेड जो है वो लॉइन का है, वुमेन का है, और बॉडी लॉइन की है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्फिंक्स। और ये बड़ी डेडली रिडल्स पूछता है लोगों से, और जो नहीं बताता उसको मार देता है, और बड़े कत्ल कर चुका होता है स्फिंक्स। सो व्हेन इडिपस गोज देयर, तो ये वहां पे जाता है और इसको वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द थिंग दैट मूव्स ऑन 4 legs in the morning, 2 in the day and 3 in evening. Oedipus tells the answer of the riddle that it is man. कि इंसान है जो सुबह यानी बचपन में 4 टांगों पे यानी 2 हाथ और 2 पांव क्रॉलिंग करता है। जब बड़ा होता है तो दिन के टाइम 2 टांगों पे चलता है यानी अपनी यूथ में, और बुजुर्ग हो जाता है शाम के टाइम वो लाठी लेके चलता है। तो स्फिंक्स किल्स इटसेल्फ, और ये प्रोनाउंस हो चुका होता है कि सिंस किंग इज डेड, सो हूसोएवर किल्स द किंग स्फिंक्स विल बी द किंग ऑफ थेब्स। सिंस इडिपस किल्स, तो ये प्रोफेसी भी पूरी हो जाती है। वो आता है, तो वो जो कैस्टस से शादी करता है, जो कि उसकी अपनी बायोलॉजिकल मदर है, और वो थेब्स का रूलर बन जाता है। When the play opens, we come to know that chorus क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ पीपल, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल थेबन एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और वो आके इडिपस को रिक्वेस्ट करते हैं कि मदद की जाए, हमारे फसलें नहीं हो रही, हमारे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, जो जिंदा हैं वो बिल्कुल लाश बने हुए हैं, हमारे माएँ बच्चों को जन्म नहीं दे रही, हमारे जो फ्रूट्स हैं वो नहीं उग रहे, तो प्लेग फैली हुई है पूरे इलाके में, तो हमें बचाया जाए। सो यहाँ पे वो इडिपस कहता है कि मैं इस चीज से, यानी वो लाइक ड्रामेटिक आयरनी बोलता है। आयरनी हम देखेंगे इन द एंड की क्या होती है कि लाइक मैं इस चीज से ला इल्म नहीं हूं। तो हालांकि वो ला इल्म यानी इन अ वे कि उसे सब पता है कि क्या हुआ, हालांकि सिर्फ उसको एक आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है इस वक्त। सो वो कहते हैं कि मैंने क्रियोन, जो कि रिश्ते में उसका ब्रदर इन लॉ लगता है अब, जो पहले उसका मामू लगता था। सो क्रियोन को वो कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी डेल्फी पे भेज दिया है, वो अभी कुछ ना कुछ मैसेज लेके आएगा। उसके बाद क्रियोन जब आता है तो क्रियोन बताता है कि गॉड कमांड्स अस टू एक्सपेल फ्रॉम द लैंड ऑफ थेब्स एन ओल्ड डिफाइलमेंट दैट इट सीम्स वी शेल्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि खुदा हमें हुक्म देते हैं कि इस थेब्स के इलाके से एक पुरानी बुराई है जो इधर घुसी हुई है, उसको निकाल दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अब ये सारे उस बुराई को ढूंढने में लग जाते हैं कि वो क्या चीज है।
और इडिपस उधर अनाउंस भी कर देता है कि और ये सिचुएशनल आयरनी बनती है कि जो बंदा भी यहाँ पे इस चीज का जिम्मेदार है वो यहाँ से चला जाए, ये जिसने पनाह दी है वो उसको भगा दे, वरना वो जो बंदा होगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा बेइज्जत करके, वो इस इलाके में नहीं रहेगा, ये मेरा हुक्म है। So Oedipus is not knowing कि he is issuing this very order for his own self, कि वो अपने लिए ये order issue कर रहा है। Now next, Tiresias is called. So Tiresias is a blind prophet जिसका मैंने आपसे mock test में question भी किया था, initial mock test में, registration test में. So Tiresias was a blind seer. Now this is very important. Tiresias was a blind seer and Oedipus was a seeing blind. Oedipus देख के भी अंधा था और Tiresias नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ पता था. So Tiresias वहां पे आता है और वो Oedipus के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता क्योंकि he knows the truth. Oedipus पहले उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आता है, उसको seeing prophet, seer ये वो कह के बुलाता है, लेकिन afterwards जब वो नहीं उसको बताता तो उसके साथ बड़ी गलत लैंग्वेज यूज करता है और उसको इन द एंड बता देता कि यू योरसेल्फ आर द डिफाइलमेंट ऑफ दिस सिटी, जिस पे इडिपस को गुस्सा आ जाता है. नाउ इडिपस थिंक्स कि क्रेओन ने ही मशवरा दिया था टायरेसियस को बुलाने का. सो दिस इज बेसिकली क्रेओन एंड टायरेसियस हु आर प्लॉटिंग अगेंस्ट इडिपस के अब चूंकि ऑर्डर हो चुका है तो इडिपस निकल जाएगा तो क्रेओन बचता है मेल मेंबर जिसको किंगशिप मिलेगी. सो इस बात पे इडिपस जो है वो कहता है कि क्रेओन मस्ट बी किल्ड और ही मस्ट बी कंडेम्ड क्योंकि वो उसने कॉन्स्पिरेसी की. और मीनवाइल इंटरवेंशन होती है कोरस की, कोरस उसको रोकते हैं. कोरस और क्रेओन का आपस में गुफ्तगू होती है. क्रेओन कहता है कि सिंस आई एम शेयरिंग एवरी राइट ऑफ यू, तुम किंग हो मैं किंग नहीं हूं, परेशानियां तुम सारी सुनते हो लोगों की, मैं सारे अहकामात देता हूं, तो मैं क्यों एक किंग की परेशानियां लेना चाहूंगा. लेकिन इडिपस इज नॉट कन्विंस्ड. तो इडिपस जो उसकी वाइफ है जो कैस्टा, शी इंटरवीन्स व्हेन शी सीज कि उसके दोनों उसका हस्बैंड उसका भाई दोनों लड़ रहे हैं. तो वो सही कहती है कि यू शुड नॉट बॉदर अबाउट प्रोफेसीज, ये जो बता रहा है कि यू शुड एक्सपेल फ्रॉम द लैंड ऑफ थेब्स एंड ऑल डिफाइलमेंट दैट इट सीम्स वी शेल्टर, कि इन प्रोफेसीज का कोई रोल नहीं है. तो यहाँ पे बेसिकली वो एक गॉड्स की बेहुरमती करती है अपने हवाले से. कि मैंने भी एक बहुत पहले प्रोफेसी सुनी थी कि लायस जो मेरा हस्बैंड था उसे बताया कि कोई ऐसा वो बेटे को जन्म देगा जो कि उसको मारेगा और उसकी वाइफ से शादी करेगा. तो लायस तो मर चुका है ऑलरेडी और बैंडिट्स का एक ग्रुप था. तो थेब्स में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि इतने ज्यादा बंदे हैं तो उन्हें एक बंदा तो नहीं मार सकता, तो डाकुओं के एक ग्रोह ने मारा होगा. तो वो क्रॉस रोड्स पे डेल्फी में इसको मारा. सो क्रॉस रोड्स यानी फोकीज, जब ये बात मेंशन होती है तो इडिपस अचानक रुक जाता है एंड ही इज वरीड कि मे बी अब टायरेसियस जो कह के गया शायद वो सच ही ना हो क्योंकि मैंने भी तो एक बंदे को मारा है. बट ही इज रिलैक्स्ड के चलो यहाँ पे बैंडिट्स का जिक्र हुआ तो आई वाज अलोन, तो मैं वो नहीं हो सकता. सो एक मैसेंजर आता है इतनी देर में और इडिपस मीनवाइल बात करता है जोकेस्टा से कि आई एम वरीड अबाउट माय मदर एंड फादर यानी मीरोप एंड पॉलीबस जिन्होंने उसको पाला, कि मैं उनको इस तरह उनके साथ ऐसा ना करूं. तो एक मैसेंजर आता है एंड ही टेल्स के आई हैव a bad news and a good news. Good news is this that you are now a king of Corinth, and bad news is that your father is died. So it's dead. So यहाँ पे the messenger is very eager to see Oedipus' mind, and he tells him not to worry because Queen Merope of Corinth was not in fact his real mother. तो उसे कहता है कि तुमने इंसेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया ऐसा. इंसेस्ट इज लाइक हैविंग सच रिलेशन विद ब्लड रिलेशंस, क्योंकि वो मेरोप तो तुम्हारी माँ थी ही नहीं और तुम्हारा बाप तो वैसे मर गया, तुमने उसको कत्ल नहीं किया, तो इट मींस कि यू आर सेव्ड. अब मैसेंजर जो है ही टर्न्स आउट टू बी द वेरी शेफर्ड जिसने उस अबंडेंट चाइल्ड को वहां से लिया और लेटर उसको कोरिंथ में गया और पॉलीबस के वाले की उस पहाड़ से लेके. एंड ही इज द सेम शेफर्ड जिसने यानी उस लाइक
वो जो शेफर्ड यहाँ से भाग के गया था उन सारे लोगों में से लायस के साथ, तो उसने इस बच्चे को इस शेफर्ड के हवाले किया था। लेकिन वो जो शेफर्ड था उसके बारे में जब पूछा जाता है तो इडिपस कहता है कि वो शेफर्ड जो है उसको तो वो जब उसने देखा कि तुम किंग बने हुए हो वो बड़ा डर गया, वो आया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया जाए, तो मैं उसके साथ मैंने उसको दूर भेज दिया बॉर्डर्स के पास, तो अब वो यहाँ पे नहीं है। तो वो जो कैस्ट्रा कहती है कि तुम्हें गॉड्स की प्रोफेसीज के बारे में इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक जो रेवोल्यूशन होती है वो सामने आ जाती है कि जब वो डिस्कशन और उनकी आगे बढ़ती है कि इडिपस फाइंड्स यानी दैट वेरी शेफर्ड कम्स बैक, उसको बुलाया जाता है एंड ही कम्स एंड टेस्टिफाइज के यही वो शेफर्ड है जिसको मैंने वो छोटा सा बच्चा इडिपस उसके हवाले किया था। इडिपस को अब पता चल जाता है। मीनवाइल इसी डिस्कशन के अंदर जो कैस्ट्रा जिसको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होता है बट शी इज नॉट लाइक विलिंग दैट थिंग टू बी एक्सपोज, वो कहती है अब जो चल रहा सिलसिला चलता रहे, तो वो रोकती है लेकिन इडिपस नहीं रुकता। रादर इडिपस को ये लगता है कि ये जो ब्रैग कर रही है अपने रॉयल नेम पे कि अगर मैं किसी बंजारे का चरवाहे का बच्चा निकल आया यानी किसी किंग का बच्चा ना हुआ तो ये कहेगी कि मेरी किसी चरवाहे से शादी हो गई, तो इसको अपने रॉयल नेम की फिक्र है। हालांकि जो कैस्ट्रा वाज बीइंग अफ्रेड ऑफ द ट्रूथ, द हॉरिबल ट्रूथ, वो अंदर चली जाती है सिंस शी नोज एवरीथिंग। व्हेन इडिपस नोज दिस ही गोज इनसाइड, और जब वो जाता है तो वो देखता है कि जो कैस्ट्रा है वो लटकी हुई है, उसने अपने आप को फांसी दे देती है। इडिपस गोज देयर and now in the text these lines are very horrible। हमने कल देखा था कि जो ये सारी ट्रेजेडीज होती हैं या किलिंग होती है ये फ्रंट पे नहीं होती हैं स्टेज के, क्योंकि एक तो उनके पास वो ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, सेकेंडली ये वो ट्रेजिक वो जो यानी ब्लड शेड दिखाना ग्रीसम चीजें दिखाते नहीं थे, तो ये बैक स्टेज पे होता था। तो एक सर्वेंट आके बताता है कि भाई मैं गया तो मैंने देखा जो कैस्ट्रा लटकी हुई थी, और एडिपस ने क्या किया, एडिपस ने तलवार मंगाई लेकिन तलवार नहीं मिली, तो उसने फिर जो कैस्ट्रा की बॉडी पे जो ब्रूचेस लगे हुए थे उनको निकाला और उससे अपनी आंखों को मारना शुरू कर दिया, आंखें फोड़ दी, उसके अंदर से ब्लड स्प्राउट होके बाहर निकला, एंड देन Oedipus blinded himself. So now blind Oedipus begs to be exiled as soon as possible and asks Creon to look after his two daughters, Antigone and Ismene, lamenting that they should have been born into such a cursed family. They should not have been born, rather. So Creon counsels that Oedipus should be kept in the palace until oracles can be consulted regarding what is best to be done. And then the play ends at, and the chorus wails that count no man happy till he dies, free of pain at last. यानी कोई बंदा भी तब तक खुश नहीं है जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज और एडिपस की लाइफ तो इंतहाई मिजरेबल है, इसको मर के ही चैन आएगा. So in afterwards, Antigone, जो एडिपस एट क्लोनस उसमें जाता है, एक जगह पे पनाह लेता है, लेकिन बड़ी एक wretched लाइफ है इसकी. इसकी एक बेटी की शादी क्रियोन के बेटे से तय हुई होती है. सो उसके साथ क्या होता है, विल बी knowing about that tomorrow in Antigone, जो इसका एक सीक्वल में प्ले है. So important lines of Oedipus are, एक तो मैंने आपको बोल दी कि God commands us to expel from the land of Thebes and all defilement that it seems we shelter. Apart from that, we have I Oedipus, who bears the famous name. अब इस लाइन को अपने याद रखने, इस लाइन को मैं आगे लिंक करूंगा एक और लाइन से. And again then he says, each of you suffers in himself alone his anguish, not another's, but my spirit groans for the city. Then how dreadful knowledge of the truth can be. Now this is what Tiresias says when he starts his dialogue with Oedipus, that how dreadful the knowledge of truth can be. Where there's no help in truth, I knew this well, but made myself forget I should not have come. वो कहता मुझे तो पहले ही पता था कि मुझे आना नहीं चाहिए था. Oedipus says to him, you call me unfeeling? So Tiresias says this to Oedipus, you call me unfeeling. If you could only see the nature of your own feelings or nature of your own wrongdoings. कि तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे अंदर जज्बात नहीं है, कि मैं सिटी को बचाना नहीं चाहता,
तुम कभी ये देखो कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो. So Oedipus then says, "You're madman. There's no one here." Sorry, Tiresias says, "There's no one here who will not curse you soon as you curse me." So ये Oedipus उसको पहले इस इन लाइन से पहले कहता है कि "You sightless, witless, and thoughtless, wretched old man." कहता तुम मुझे मैडमैन कह रहे हो, ब्लाइंड कह रहे हो, अभी कोई बंदा ऐसा नहीं है इधर जो तुम पे कर्स नहीं करेगा बहुत जल्दी. Then wealth, power, craft of statesmanship, kingly position everywhere admired. What savage envy is stored up against these? This is said by Oedipus to Creon. So then this is what prophets and prophecies are worth. This is said by Jocasta. Have no dread of them. It is God himself who can show us what he wills in his own way. And then Oedipus says, when he knows everything, I, Oedipus, damned in his birth, in his marriage damned in the blood he shed with his own hand. So this is the comparison with that line, I, Oedipus, who bears a famous name. This is actually his hamartia, his pride, कि मैं वो मशहूर Oedipus हूँ जिसका हर तरफ चर्चा है कि उसने स्फिंक्स से निजात दिलाई. So then उस लाइन को इससे कंपेयर करें, उसमें अनाथी और इसमें जवाल है कि I, Oedipus damned in his birth, in his marriage damned in the blood he shed with his own hand. And then the greatest griefs are those we cause ourselves. जो हम अपने आप को दुख देते हैं उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता. Now the character of King Oedipus. So when he was tied up there, when he was left to die, उस वक्त इसके पास इसके पाँव में जंजीर के साथ एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है ताकि ये हिल ना सके बच्चा और वहीं पे मर जाए, तो उसका पाँव सूज जाता है. So Oedipus in Greek language means, the word means swollen foot, सूजे हुए पाँव वाला. Oedipus is an intelligent person, there is no doubt. He is intelligent, so that is why he is able to answer to the questions of Sphinx. But again, it is his pride जो कि उसकी intelligence पर बाद में हावी हो जाता है. Oedipus is a rash person, गुस्से वाला है. It is because of his rash behavior कि उसने उस कोर्टियर की बात पे भी तवज्जो दे दी, ये वहां से निकल भी आया, रास्ते में इसने अपने बाप को मार भी दिया, बाकी लोगों को मार दिया और आके बगैर कुछ सोचे समझे किंगशिप अज्यूम कर ली. Moreover, he is a stubbornly blind person. कि वो बिल्कुल ब्लाइंड है. उसको जब क्लूज मिल रहे थे, Tiresias was the person who knew everything and he was giving clues, but Oedipus was then going deeper and deeper into arguments. He should have known that he himself is the defilement. And then he is disrespectful towards Tiresias, towards the gods. He has his pride, which is his tragic flaw. उसका hamartia है. ये hamartia हमेशा हर tragic hero में होता है. ट्रेजिक हीरो वो होता है जो कि एक बड़ी प्रॉस्पर लाइफ को गुजारा होता है और उससे फिर नीचे जमीन पे डस्ट में गिरता है, यानी एक चेंज ऑफ फॉर्चून होती है. तो उसके लिए कोई ना कोई रीजन होता है. जिस तरह ओथेलो का जेलसी था, जो हैमलेट था उसकी थिंकिंग थी, यानी डिलेइंग या लेजी नेचर. इसका जो था, इसका प्राइड था जो कि इसको ले डूबा. सो इन दिस वे Oedipus was a legitimate son but was cast away as if illegitimate. Now, this gave birth to the illegitimate acts on the part of the legitimate son. Now, this is also a debate about Oedipus, that whether he was suffering because of his character or whether it was preordained in his fate. So the question or the answer is that Oedipus was suffering because of, like, this is again like hero of Paradise Lost. You can justify any comment. I can give you comments in both favor. If we are focusing on fate, तो सब कुछ लिखा था. गॉड्स ने पहले कमांड कर दिया था लायस के एक्ट के ऊपर. इडिपस को निकाल भी दिया गया. उसके पेरेंट्स ने भी कोशिश की. इडिपस ने खुद कोशिश की कि वो कंसल्ट करे. वो वहां से भाग आया. उसने आके चुप करके एक और इलाके में आ गया. तो जो होना था वो हो गया. और जो सेकंड है करेक्टर. सो इडिपस फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड हैव शोन द डिग्निटी ऑफ करेक्टर. अगर उसे अपने था इस चीज का कि मैं अपने बाप को मारूंगा,
तो फिर उस उम्र के बंदे को कत्ल ही ना करते जो कि उसके बाप की उम्र का था। तो उसको कत्ल करते हुए, एक और बात है कि जब इडिपस टाइरिसियस से बात कर रहा तो उससे कहता है कि तुम बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हें मार देता। भाई तुम एक बूढ़े को ऑलरेडी तो मारा है जो कि इनफैक्ट तुम्हारा फादर था, तो टाइरिसियस को मारने में तुम्हें क्या। सो टाइरिसियस अपने फादर को इसने मारा। फिर जब तुम्हें पता है कि तुम उस खातून से शादी करोगे तुम्हारी मदर है, तो देन व्हाई आर यू मैरिंग अ वुमन हु इज ऑफ योर मदर्स एज। तो तब इसकी अकल पे पर्दे थे, तब इसने उस चीज के बारे में नहीं सोचा। तो मोस्ट ऑफ द like horrors, they are done by Oedipus' own error of judgment and his own character. There is use of irony. Irony तीन तरह की होती है, verbal होती है, situational होती है, dramatic होती है। verbal irony कौन सी होती है? जो कि हम अल्फाज के जरिए बोलते हैं कि एक बंदा क्लास में लेट आता है और मैं उसे कहता हूँ क्या बहुत जल्दी आए माशाल्लाह, so this is verbal irony. Situational irony क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक दोस्त को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पे जाता हूँ अचानक और वो आगे घर ही नहीं होता, सो दिस इज सरप्राइज फॉर मी, सो दिस इज सिचुएशनल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जिसमें जो एक्टर्स हैं परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट नोइंग द थिंग कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि ये ऐसे कह रहे हैं डीपस कि भाई मुझे मर्डरर का नहीं पता, इसको तो सारा कुछ पता है, ये खुद ही मर्डरर है। सो करेक्टर्स को नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता होता है, सो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। So यहाँ पे वर्बल आयरनी क्या है? नाउ इट इज माई ग्रीफ देन इट विल बी योर्स, कि ये भी मेरा दुख है, ये बाद में तुम्हारा बन जाएगा। और इनफैक्ट इडिपस इसको नहीं मानता, लेकिन वो दुख वाकई इडिपस का होता है। इडिपस जो प्रोनाउंस करता है पनिशमेंट फॉर द मर्डरर, कि इसको निकाल दिया जाए बेइज्जत करके, वो पनिशमेंट सिचुएशन चेंज होती है, इडिपस पे ही लागू हो जाती है। एंड ड्रामेटिक क्या है? आई वॉज अननोन टू दिस टेल एज आई वॉज अननोन टू दिस क्राइम। इडिपस जब वो सुनता है किंग लायस के मर्डर के बारे में, कहते कि मैं इस टेल के बारे में या लायस के बारे में या इस क्राइम के बारे में नहीं जानता था। तो भाई तुम जानते थे, तुमने क्राइम भी किया, तुमने उसको मारा और वो तुम्हारा बाप था। So this is the use of irony in this. So this was all about Oedipus Rex. Now the house is open for your questions.